So Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. It means after few minutes, after some hours, she just became a part of that school and she made one friend also. उससे पहले वो स्कूल क्या होता है वो कुछ नहीं पता था उसे. So the lady teacher, that is headmistress, who was in the class, was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in mango orchard, and the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. It means she was watching everything. The thing was as like looking same. Then जो हेड टीचर होती है उसके पास खड़ी होती है. सी क्या होता है. व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन. इट मीन्स व्हाट्स योर नेम भोली. देखते हैं क्या कहती है आंसर में. सी. अब ये हैमरिंग का या स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम है, हेजिटेशन है, सो वो ऐसे बोलती है लेकिन बोल नहीं पाती. एक्चुअली शी वांटेड टू प्रोनाउंसिएट हर नेम भोली. शी कुड स्टैमर नो फर्दर than that. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. As usual, जैसे क्लास में होता है, after asking a question by teacher, if someone is unable to give the right answer, so another children used to laugh at her. तो ऐसे भी उसके साथ होता है. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. Sobbing, रो रही है सिसक के. छुट्टी हो गई है, but she don't like to go outside of the building. See what will be the next. Yes. Bholi, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Bholi got up. Now tell me your name. अब पोलाइटली टीचर उसको पूछ रही, बिकॉज उसकी साइकोलॉजी समझ चुकी है वो. ठीक है. स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. बेचारी इतनी रोई थी कि चारों तरफ पसीने ही पसीने दिख रहे थे. Would her stammering tongue again disgrace her for a shake of this kind woman? However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice she would not laugh at her. Then she told everything she asked again to the child. भोली का नाम पूछती है तो फिर भोली उसको बोलती है स्टैमरिंग करते हुए. वो ऐसे बोलती है लेकिन बोल नहीं पाती है. वेल डन, वेल डन. लेकिन टीचर्स उसको इनकरेज कर रही है. द टीचर इनकरेज्ड हर. कम ऑन नाउ यू कैन टेल योर फुल नेम. या देन शी कॉल्ड. Then she replied, Bholi. Okay, at last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. अब भोली नाम बोल देने के बाद उसको लगता है कि कितना बड़ा अचीवमेंट उसको मिल गया. ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने प्यार से उसको पूछा है. लेट्स सी. वेल डन. द टीचर पैटेड अफेक्शनेटली. उसकी पीठ को थपथपाती है और बोलती है, दैट पुट
the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. उसको encourage करने के लिए बोलती है, दिल से डर निकालो, सबके जैसा तुम भी बात कर सकती हो. ठीक है. भोली looked up as if to ask really. भोली जो है खड़ी हो जाती है और उसके बाद भोली looked up as if to ask really. एंड ऐसा लगता है कि यही कहना चाह रही है, वाकई में मैं बोल सकती हूँ. इसका मतलब उसके अंदर से अब धीरे धीरे डर निकल रहा है. एंड दैट इज़ हैपेंड बाय अ टीचर इन अ स्कूल. सो लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट. Okay guys, yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? Boli nodded. No, say it about. Yes. And Boli herself was astonished that she had been able to say it. It means after a long of practice, she was able to speak something. तो यही सबसे बड़ी बात थी. टीचर पूछती है कि क्या तुम स्कूल आओगी. पहले तो वो नॉडिंग करती है, रिप्लाई करती है नेगेटिव मैनर में, लेकिन बाद में मान जाती है. लेट्स सी. Did I didn't I tell you? Now take this book. The book was full of nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and cow, just like Lakshmi. And with very picture was a word in big लेटर्स. तो लक्ष्मी का बार बार डिस्क्रिप्शन आ रहा है क्योंकि वो चाहती भी थी कि अपनी एक पड़ोस की बच्ची लक्ष्मी के जैसा वो स्कूल जाए, पढ़े लिखे. तो दैट इज़ वाई उसको ऐसा प्रलोभन दिया जा रहा है कि उसके जैसा बुक मैं दे रही हूँ, घर पे पढ़ाई करना. इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक. टीचर इज सेइंग दैट. देन a still bigger one. In time, you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. So she encouraged her that if you will learn that in the school, so nobody will laugh at you. ठीक है. तो धीरे धीरे सीख भी जाओगी. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? It means स्लाइटेस्ट स्टैमर कंडीशन में तुम आ सकती हो, मतलब थोड़ी बहुत हकलाओगी, ज़्यादा परेशान ना हो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. सो इस तरह से बोल के उसको फेयरवेल कर देती है, घर के लिए विदा कर देती है. वोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. Throbbing, that is धड़कने बढ़ जाना, धक धक की आवाज़ करना. तो वो कब होता है? बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन में भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होने पे भी होता है, और बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी में भी होता है. ठीक है. तो ये क्या सोचती है कि शी वॉज गोइंग टू गेट अ न्यू लाइफ, शी वॉज गोइंग टू गेट अ न्यू चांस व्हेन शी विल रिटर्न टू द स्कूल. सो लेट्स सी क्या होता है. So thus the years passed, the village became a small town, the little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton grinding mill. The mail train began to stop at their railway station. It means the place was fully developed. अब धीरे धीरे वो प्लेस काफ़ी डेवलप हो गया. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" बिशंबर्स के घर से एक प्रपोजल आ रहा होता है भोली की शादी के लिए. वो दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे होते हैं, भोली के मदर फादर बात कर रहे होते हैं. ठीक है ना. देखते हैं क्या होता है. Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. यानी अच्छा दूल्हा है उसके लिए, बहुत अच्छी बात है. अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इट वॉज वेरी नाइस couple. It will be nice couple. A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. ठीक है. तो भोली की माँ
पर ये भी बोलती है कि चलो भाई ठीक है, दुकान भी है, काम करने वाला आदमी है, बैंक में पैसे भी हैं, एंड स्पेशल थिंग इज़ दैट कि वो डाउरी भी नहीं डिमांड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। सो दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो। बट द प्रॉब्लम वाज दैट जो बिशंबर का जो प्रपोजल जो आता है, तो बिशंबर जो बंदा होता है वो थोड़ा सा एजेड होता है इन कंपैरिजन भोली, ओके, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स। लिम्स क्या होता है? दैट इज़ लिम। अगर कोई लंगड़ा के चलता हो, लंगड़ा व्यक्ति, उसको लिम बोलते हैं, यानी उसकी बॉडी अपीयरेंस ठीक नहीं होती है। रामलाल इज सेइंग टू हर वाइफ दैट कि भाई उसका एज तो मेरे इतना है और मेरी बेटी का एज देखो। तो अब इस तरह से शादी करना, मिसमैच्ड कंडीशन वाज देयर। द चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। देखिए क्या कहा है, द चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। ठीक है, बड़ी मुश्किल से लोग बड़े दिखते हैं। किसके? चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रामलाल बहुत परेशान अपनी बेटी को इस मिसमैच्ड कंडीशन को लेकर के बोलता, बट ही इज़ नॉट सो यंग एंड यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। तो धीरे धीरे तो लोग ग्रोन अप हो ही जाते हैं। ग्रोन अप का मतलब समझ रहे हो ना, वयस्क हो जाना, बड़े हो जाना। सो लेट्स सी उसकी शादी बिशंबर के साथ होती है या नहीं होती है। लेट्स सी।